As all of you are aware about this, in last lecture, what we have discussed, first of all, just a minute, let me take attendance first. Okay, so in last lecture, we have started with descriptor. What is a descriptor? First of all, am I audible to you all? Is it my, am I audible to you all? Okay. Okay. Now let me open the PPT. Let me go to the slide. Let's say that descriptor. So first of all, what is descriptor? Descriptor क्या है? So descriptor is a data structure which will give you information about the segment. How many such segment can be there in your system? There are n number of segments can be present in your system. Segment means what? For individual program, suppose you are writing one addition program, suppose you are writing second multiplication program. So for each and every program, you are creating the segment, and that segment can be n number of segments in 80386. That segment information, whether that segment is read-only segment, whether that segment is write-only segment, whether it is a code segment, data segment, whether it is a present in memory or not, whether it is last access or not. So every such information is represented by descriptor. So descriptor is nothing, but it is a data structure which will give you information about what is a starting address, or you can say that what will be the base address of your segment. आपके segment का base address क्या होगा? What will be the segment? What will be the base address of your segment? And what will be the limit of your segment? It means that we will add this limit in our base, so you will get the last location. And what will be your segment? What size will be considered in terms of bytes or in terms of bits? So that will be over here. And these bits are known as access rights. So access rights contains A. It means that whether your descriptor has been accessed, your segment has been accessed or not recently. Type. So it will be one of the type over here. It is a data segment, stack segment, code segment, whether we will have permission for read write or read only, so according to that, and whether it is a conforming code segment or it is a normal code segment. What is a conforming code segment? That we will discuss in today's lecture. But right now, this is about the type. Same way S bit will indicate whether the descriptor is a system descriptor or not. So if it is 0, it means that it is a system descriptor. If it is 1, it is non-system. Non-system means all of this. ये जो हमारे पास है, this all descriptor are non-system descriptor. ये जो descriptors है, data segment, extra segment, all these are non-system descriptor. So these all descriptors are known as non-system. That is either code, data, or stack that are non-system. System descriptor क्या होगा? We will discuss it today. So there are multiple system, total बहुत सारे सिस्टम डिस्क्रिप्टर है, उसमें से कुछ सिस्टम डिस्क्रिप्टर हमको स्टडी करने होंगे. डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, ये जो सेगमेंट आपने डिफाइन किया हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास प्रिविलेज लेवल क्या होना चाहिए. सो दिस विल इंडिकेट द डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल कि ये सेगमेंट का खुद का प्रिविलेज लेवल क्या है. सो दैट विल बी इंडिकेटेड बाय 2 bit. So if it can be 0, 1, 2 or 3. 0 is having the highest privilege level, 3 is having the lowest privilege level.
and this P means whether this segment, हमारे पास बहुत सारे segments होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक साथ सभी segments physical memory में present नहीं होंगे. Whatever segment we require, only that segment we will bring in the memory. After utilizing that segment, we will remove it from main memory. तो अभी सपोज मुझे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, मूव एबीसी, मूव एएक्स टू 1 2 3 4. तो एएक्स में मुझे 1 2 3 4 ऐड करना है. तो अब ये मूव वाली इंस्ट्रक्शन कौन से सेगमेंट की है, क्या वो सेगमेंट ऑलरेडी कौन से सेगमेंट की होगी, कोड सेगमेंट की. तो क्या ये जो कोड सेगमेंट है वो भी मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है. सो दैट कैन बी चेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिट. दिस विल हेल्प इन मल्टीटास्किंग. ये कहां पे यूटिलाइज होता है जनरली, दिस विल बी हेल्प इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट. मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में क्या होगा, आप अभी सपोज अभी 10 बज के या 11 बज के 2 मिनट पे रोल नंबर 1 कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम कंप्लीट हो रहा है 11 बज के 3 मिनट पे. तो 11 बज के 3 मिनट के बाद जो टास्क लोड होगा वो नया टास्क होगा. सो इट विल बी द न्यू टास्क, इट विल बी द न्यू डिस्क्रिप्टर. तो प्रीवियस टास्क जो होगा उसको हमको कहीं पे स्टोर करना होगा वापस. सो दैट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी आर यूजिंग दिस. सो मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में ये सब कुछ यूज होता है. टिल नाउ वी हैव सीन ओनली सिंगल टास्किंग, सिंगल टास्क ऑपरेशन. अभी तक हमने जो देखा था वो आपको ये अभी समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी. क्यों? क्योंकि आपके माइंड में अभी एक ही पिक्चर है कि आपने सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. इन रियल देयर आर मल्टीपल टास्क्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स आर देयर. सो कौन सा प्रोग्राम का डेटा सेगमेंट अभी मेमोरी में रखना है, कौन से प्रोग्राम का डेटा सेगमेंट मेमोरी में नहीं रखना है, सो दैट कैन बी decided from over here. वो सब कुछ यहाँ से decide होता है based on the access bit and based on the present bit. So that you will learn over here. Okay, so that is all about this descriptor and revision of this descriptor. Then we have seen this example. The example हमने study किया था. We have calculated the base address. We have calculated the size. We have calculated the type and everything that we have did in our previous lecture. Is it okay? Till now, do you have any question? Do you have any doubt? Reply me in comment yes or no, so I can go further. I can proceed further. If you don't have any doubt, let me know so I can go further. Okay. So there are actually, you can say that one global table. That table is known as this old descriptor, whether it is a system descriptor or whether it is a non-system descriptor. Every descriptor will be stored in one table. And that table is known as GDT, Global Descriptor Table. हर एक descriptor, whether it is a system descriptor, data segment descriptor, code segment descriptor, stack segment descriptor, जो भी होगा, suppose आपके प्रोग्राम, आपके सिस्टम ने आपने एट अ टाइम 10 टास्क परफॉर्म किए हुए हैं. You have performed 10 tasks. If you have performed 10 tasks, then if you are running 10 tasks simultaneously, suppose अभी ये मेरी सिस्टम है, तो मेरी सिस्टम में अभी मेरे पास ब्राउजर रनिंग है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रनिंग है, this folder is open, so right now 4 or 5 tasks are running. So each and every task has been allocated some memory. So हर एक टास्क को कुछ मेमोरी एलोकेटेड हुई होगी. And that memory, that information, वो कौन सा सेगमेंट होगा, उसका बेस क्या होगा, that every information will be stored in one table, and that table is known as global descriptor table. So global descriptor table के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं. And जो इंडिविजुअल टास्क होगा, सपोज ये एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास एक सेपरेट स्पेस होगी, उसको बोलते हैं लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होगा एक हमारे पास, which will be local for that particular task only. And there will be one global descriptor table that is shared by all the tasks. Locally हमारे पास एक से ज्यादा टेबल हो सकते हैं. So that we are going to discuss over here.
So first of all, what is there in protected mode? Protected mode में क्या होगा? So whenever we will start the 80386, it will always start in real mode. 80386 जब start करोगे तो कौन से mode में start होगा? Real mode में. So when we want to switch from real mode to protected mode, आपको क्या करना होगा? PE bit को आपको set करना होगा in CR0 register. So we will switch from real mode to the protected mode, and the protected mode will allow you to perform memory management unit or virtual address to physical address translation, paging if paging is enabled or disabled. So according to that, paging protection for multitasking capability थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. सो यहाँ पे मेमोरी मैनेज करते हो इसलिए ये यूनिट आपका एड्रेस कन्वर्ट करेगा कहां से? वर्चुअल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस. सो दैट हैज बीन डन बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. सो दैट इज ओवर हियर इन प्रोटेक्टेड मोड. सो इन प्रोटेक्टेड मोड नाउ द सेगमेंट, योर सेगमेंट रजिस्टर विल नॉट वर्क लाइक इन रियल मोड. जैसे हम रियल मोड में सेगमेंट रजिस्टर का यूज कर रहे थे वैसे अब यहाँ पे नहीं करेंगे. यहाँ पे उसका यूज होगा एज अ सिलेक्टर. सो सेगमेंट, ईच सेगमेंट, वन सेगमेंट डिस्क्रिप्टर इज क्रिएटेड एंड मैनेज. हर एक सेगमेंट के लिए आपका डिस्क्रिप्टर है वो क्रिएट होगा और वो डिस्क्रिप्टर मैनेज होगा कैसे? आपके सेगमेंट रजिस्टर से. सो फॉर मल्टीटास्किंग सिस्टम एट अ टाइम there are plenty number of segments can be there in a memory which are a part of the different task. So which we need to store in descriptor table. So that table is known as, that is what I have told you, global descriptor table as well as local descriptor table. So how does the 80386 organize the large number of segment descriptor? ये जो बहुत सारे segments होते हैं वो हर एक segment की information store होती है descriptor में. तो अब ये डिस्क्रिप्टर्स कहाँ पे होंगे? सो दिस डिस्क्रिप्टर्स आर स्टोर इन टेबल. दैट टेबल आर, देयर आर जनरली थ्री टेबल. One is a global descriptor table, second is a local descriptor table, and the third one is interrupt descriptor table. So global descriptor table में सब कुछ होगा, whether it is a system, so it will be shared by all the tasks. हर एक टास्क के बीच में ये शेयर होगा. लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल विल बी फॉर इंडिविजुअल टास्क. हर एक टास्क के लिए ये इंडिविजुअल होगा. एंड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल विल बी फॉर इंटरप्ट हैंडलिंग. आप इंटरप्ट हैंडल कैसे करोगे? सो दैट ओवर हियर वी विल डिस्कस ऑल दिस टेबल इन डिटेल. सो ये जो डिस्क्रिप्टर टेबल है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, वो कहाँ पे होगा? इट विल बी अगेन इन मेमोरी. सेम वे लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल भी कहाँ पे होगा? अगेन इट विल बी इन मेन मेमोरी. सेम वे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल भी कहाँ पे स्टोर होगा? अगेन इट विल बी इन मेन मेमोरी. तो ये जो हमारी मेन मेमोरी है, नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. दिस इज आवर मेन मेमोरी. इन मेन मेमोरी वी आर हैविंग सेगमेंट्स, whether it is a code segment, data segment, every segment will be there. अब उसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमारे पास होगा सेगमेंट्स. दिस यू कैन से दैट दिस इज अ सेगमेंट, ऑल द सेगमेंट्स आर ओवर हियर. अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी? एक टेबल में. एक कितने सेगमेंट्स है उसमें, उसकी स्टार्टिंग साइज क्या, स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा है, उसका एंड एड्रेस कौन सा है, दैट इज स्टोर इन दिस ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल. सो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल भी कहाँ पे होगा? इट विल बी अगेन इन मेमोरी. वो भी कहाँ पे होगा? मेमोरी में. तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर जो टेबल है वो मेमोरी में कहाँ पे? एट विच लोकेशन दिस ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल इज अवेलेबल? दैट इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम, that information will be get from global descriptor table register. तो global descriptor table register ultimately क्या है? it is one register. ये एक register है. तो ये register में क्या होगा? आपके पास limit, यहाँ पे आपके पास base address होगा. I will give you the in next slide में इसका format आपको बता रहा हूँ. so यहाँ पे base address होगा and यहाँ पे उसके पास limit होगी. and this base address is pointing to the memory location. यहां से आपका जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होगा वो स्टार्ट होगा. दैट इज ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल विच इज ऑफ 48 बिट. ये कितने, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस? 48 बिट. साइज ऑफ दिस ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल इज 48 bit because it contains 32 bit physical address and it contains 16 bit limit field. वो उसमें क्या क्या है? So it contains 32 bit physical address as well as 16 bit 32 bit base address. 32 bit का ये base address होगा. Base address means starting address. And
ये रजिस्टर इनिशियलाइज कब होगा? व्हेन दिस रजिस्टर विल बी इनिशियलाइज. सो दिस रजिस्टर विल बी इनिशियलाइज बाय एट द टाइम ऑफ सिस्टम बूट. जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करोगे, एट द टाइम दिस रजिस्टर विल बी इनिशियलाइज बाय विच इंस्ट्रक्शन? LGDT. So LGDT is the instruction which has been executed while booting, whenever we are booting our operating system. So उसका मीनिंग क्या है? लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल. L means load, GDT means ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल. तो ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल लोड करेगा और उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे बेस एड्रेस है, वो यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा एंड यहाँ पे लिमिट फील्ड वो कैलकुलेट करके स्टोर कर देगा. सो योर रजिस्टर विल बी इनिशियलाइज्ड लाइक दिस. हर एक टास्क के लिए, इंडिविजुअल टास्क के लिए हमारे पास होगा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. सो अब ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल कैसे एक्सेस करेंगे? सो दैट आल्सो वी विल सी. बट वो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में, ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल मेमोरी में कहाँ पे है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? यू विल गेट इट फ्रॉम लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर. अब ये रजिस्टर है, दिस रजिस्टर इज ऑफ ओनली 16 बिट, क्योंकि इसमें बेस एड्रेस इंडिकेट नहीं होगा. ये जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर है, it will be of only 16 bit because it will not store the starting address. Don't worry about it, we will see it in detail. So that is loaded, this register will be loaded by this instruction LLDT, लोड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. जैसे ही आप ये लिखो कि आपका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल लोड हो जाएगा और उसका ऑफसेट एड्रेस स्टोर हो जाएगा ये रजिस्टर में. And same way for interrupt descriptor. So let's see that how your particular descriptor will be selected. Global descriptor table हमारे जो है उसमें क्या होगा? So global descriptor table is what? It is nothing but it is collection of such descriptors. So GDT represent global memory and which are shared by all the software tasks. हर एक task ये share करेगा. अब 80386 यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड मोड है, उसमें हमारे पास कितने ऐसे जीडीटी होंगे? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. देयर विल बी ओनली वन जीडीटी इन 80386. ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल एक ही होगा. सेम वे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल भी एक ही होगा. देयर विल बी ओनली वन जीडीटी एंड वन आईडीटी, बट देयर कैन बी मेनी एलडीटी. बहुत सारे हमारे पास लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल हो सकते हैं, बट ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल and interrupt descriptor table will be only one. So each the global descriptor table stores the segment descriptors and each of is 8 byte. हर एक डिस्क्रिप्टर की साइज क्या है? So that we have seen, ये जो हमने देखा, हर एक डिस्क्रिप्टर की साइज क्या है? What is the size of each and every descriptor? It is of 8 byte. हर एक डिस्क्रिप्टर है वो 8 बाइट का है. सो ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्टर इज ऑफ 8 बाइट. सो हर एक डिस्क्रिप्टर की साइज है 8 बाइट. सो ऐसे कितने डिस्क्रिप्टर होंगे हमारे पास? ये जो टेबल है, दिस इज अ टेबल. सो ये टेबल में ऐसी कितनी एंट्री होंगी? टेबल में क्या होगा? डिस्क्रिप्टर. सो कितने डिस्क्रिप्टर होंगे? ईच ऑफ कहा है? Each and every descriptor is of 8 byte. So how many such descriptors are there in your memory? ऐसे कितने डिस्क्रिप्टर्स आपके मेमोरी में, आपके रजिस्टर में, आपके ये टेबल में होंगे? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में कितने होंगे? So that we will come to the point over here. That can be 2 raised to 13 such descriptor. अब ये 2 raised to 13 कहाँ से आया? Why it is only 2 raised to 13? So for that, let me first of all to this point 2 raised to 13 again. What is a selector? So यहाँ पे हमारे पास जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर. जस्ट अ मिनट, 1 minute, okay. I will be there. I am having one call, so be over here. Just 1 minute.
Okay, so we are discussing over here about the registers. Which are the registers? Am I audible to you all? Okay. So yes, we are discussing about the registers. What are the registers? We are discussing about the global descriptor table. So from where you will get this all information and how address will be calculated and everything. So ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल उसमें हमारे पास ये डिस्क्रिप्टर्स होंगे. अब हमारे पास जो सेगमेंट रजिस्टर्स है that are code segment register, data segment register, state segment register, extra segment register. So that registers we are having. That register will now work as a selector. अब वो registers कैसे यहाँ पे treat होंगे? So that registers will be now used as a selector. ये जो 6 segment registers है हमारे पास, अब वो कैसा काम करेंगे? So now it will work as a selector. तो सिलेक्टर में क्या होगा? So selector में वो कैसे यूज करेंगे? So that I already explained that out of this 16 bit, ये जो 16 bit है उसमें से पहले 2 bit होंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे? रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल. कोई सेगमेंट आपको एक्सेस करना है तो आप उसे लेवल से उसको एक्सेस करना चाहते हो. So this is requested level. Suppose you want to access any segment, whether it is a data segment, core segment or extra segment, कुछ भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट का लेवल क्या है वो यहाँ से आपको पता चलेगा. So this 2 bit will indicate the level of request. Then ये TI bit, that is a type indicator. Type indicator will inform you whether you are going for global descriptor table, whether you are this index. Now this 13 bit will indicate your index. यहाँ पे ये कितने bits है? How many bits are there? Total 16 bit में से ये 3 bit हम इसके लिए यूज करेंगे. तो now how many remaining bits are there? 13. So that's why over here we are having raised to 13 because it is a pointing to the index. इंडेक्स का मीनिंग क्या है? ये हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर होगा, उसमें हमारे पास एंट्रीज होंगी. एंट्री का मीनिंग क्या है? हर एक एंट्री क्या इंडिकेट कर रही होगी आपके डिस्क्रिप्टर टेबल को. तो ये मेरा descriptor. This is my first descriptor. This is my second descriptor. So this is my third descriptor. So यहाँ पे index क्या indicate करेगा? Suppose it is 3. 3 will be represented by this 13 bit में मैं 4 represent करूँगा and that is indicating my this descriptor right now. तो वो index indicate करेगा. So यहाँ पे ये मेरा 3 है. So it will be over here. Total how many total descriptor can be there in your? So total we can have 2 raised to 13 and that is 8192 number of descriptors and each descriptor contains 8 byte. So that is a maximum size of your table is 8192 multiplied by 8. So that is a 64 KB 2 raised to 16. So it means that 64 KB. तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है उसकी साइज क्या हो सकती है? उसकी साइज हो सकती है 60 KB. ये पूरा टेबल है वो मेरा 64 KB का हो डिवाइडेड होगा. किसमें डिवाइडेड होगा? डिस्क्रिप्टर्स. इसमें क्या स्टोर किया होगा? हर एक एंट्री क्या इंडिकेट करेगी? ईच एंट्री विल इंडिकेट द डिस्क्रिप्टर. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच एंट्री? हर एक एंट्री की साइज क्या होगी? 8 बाइट. 8 बाइट. सो दैट इज और वो इंडेक्स जैसे हम एरे ऑफ 0 लिखते हैं तो यहाँ पे एरे ऑफ 0 ग्लोबल डिस्क्रिप्टर ऑफ 0, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर ऑफ 1, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर ऑफ 2, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर ऑफ 3 ऐसा लिखेंगे तो वो हमको इंडिकेट करेगा डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स. सो जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर 0 है, जो 0th डिस्क्रिप्टर है यहाँ पे पहले जो 0 डिस्क्रिप्टर GDT 0 is reserve. We are not using it. So that is a reserve and that is known as वो रिजर्व है and that is known as null descriptor. ये जो 0th डिस्क्रिप्टर है वो क्या है? null descriptor. So that is reserve and it is known as null descriptor. GDT 0 is reserve and it is known as null descriptor. So that is about the global descriptor table. Now let's see with examples we will get better idea. So consider that this is global descriptor table रजिस्टर. ये मेरा रजिस्टर है. सो रजिस्टर में बेस एड्रेस क्या मेंशन किया हुआ है मैंने? सो बेस एड्रेस इज दिस 00100F23
and limit is this 03FF. Again, remember one thing, global descriptor table register is of 48 bit. 0 to 15 bit will indicate the limit, 16 to 47 bit will indicate the base. तो ये base क्या होगा? This base will be for your table. कौन सा table? Global descriptor table. So global descriptor table में ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल कौन से फिजिकल लोकेशन से स्टार्ट होगा, कौन से बेस एड्रेस पे से स्टार्ट होगा, वो यहाँ पे एड्रेस आपको मिल जाएगा डायरेक्ट. कौन से रजिस्टर में से? ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर में से. एंड उसमें आप लिमिट ऐड करोगे तो आपको लास्ट लोकेशन मिलेगा. इसका मीनिंग ये जो रजिस्टर, ये जो टेबल होगा उसकी साइज क्या है, व्हाट इज साइज ऑफ दिस टेबल. सो दिस इज अ साइज ऑफ दिस टेबल. ये मेरे टेबल की साइज हो गई, ये यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा. सो कैन यू गिव मी द लास्ट लोकेशन, लास्ट एड्रेस? यहाँ पे उसका लास्ट लोकेशन क्या होगा? सो व्हाट विल बी द लास्ट एड्रेस? 100F23. that is a starting address. ये जो है 100F23, that is a starting address. 00 इसको आप 32 बिट में लिखोगे तो इसमें आप लिमिट ऐड करोगे, प्लस लिमिट. सो लिमिट क्या है? 3FF. so that will be the last address. so that is a meaning. so is a meaning is clear? यहाँ पे base global descriptor table as well as limit का meaning क्या है? so and now based on this you can calculate the size of this table. आपको ये टेबल की साइज पता चलेगी. what is the size? साइज क्या है इस टेबल की? what is the size? लिमिट क्या है? 3FF. तो इसका मीनिंग that is my last location. तो लास्ट लोकेशन में से मैं फर्स्ट लोकेशन बाद सब्ट्रैक्ट करूंगा. if I will subtract the last location, so ultimately you will get the 3FF. so 3FF को अगर आप कंसीडर करोगे, so that is size. तो इसमें कितने डिस्क्रिप्टर होंगे? so my question is how many descriptors are there? this will be my GDT global descriptor table in memory. Each and every descriptor is of 8 byte. That's why it will be always in multiple of 8. So that's why that is answer. ये आंसर ऐसा क्यों आएगा? Because your each and every descriptor will be of 8 byte. हर एक descriptor 8 byte का होगा. So that is लिमिट विल बी 1024 बाइट्स. यहाँ पे लिमिट्स मेरे पास हमने इंडिकेट की हुई है 1024. सो 1024 डिवाइडेड बाय 8. सो टोटल 128 डिस्क्रिप्टर्स आर देयर इन दिस एग्जांपल. ऐसा नहीं है कि हर एक सिस्टम में ऐसा ही होगा, बट दिस फॉर दिस एग्जांपल हाउ मेनी डिस्क्रिप्टर्स आर देयर? 128 डिस्क्रिप्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस टेबल एंड 128 नंबरिंग अगर आप दोगे तो नंबर फ्रॉम 0 to 127. In descriptor 0, we are not using it. It is reserved. It is known as
null descriptor. Descriptor 0 है, उसको हम क्या बोलते हैं? That is called null descriptor. Okay. Up next. So let's next question. Is it clear? First of all, is there any doubt in the previous example? ये example में कोई doubt है? Yes or no? Okay. Now this. If I will give you the selector value means this will be there in any one of the segment register. If you want to access code segment, then this will be there in CS. If you want to access data segment, then this will be there in data segment register. So ये कोई segment register की value मैं आपको provide कर रहा हूँ. तो आपको ये बताना है कि ये कौन से टेबल को रिफर कर रहा है. कौन से टेबल को मीन्स whether it is referring to global descriptor table or it is referring to the local descriptor table, and what is the index that has been pointed. ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में ये कौन सी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है. विच इंडेक्स हैज बीन पॉइंटेड बाय दिस selector. That you have to provide, that information you have to give me. So if you will write it 2F32, इसको अगर आप बाइनरी में लिखोगे, so this is a 2, this is a F, this is a 3, and this 4 bit will indicate 2. Okay. So first of all you have to represent it in binary. अब binary में represent करने के बाद यहाँ से lower bit, so lower 2 bit will indicate the requested privilege level. तो यहाँ पे requested privilege level क्या है? Whether it is a 0, whether it is a 1, whether it is a 2, or whether it is a 3. What is the requested privilege level? 10 means 2. So यहाँ पे जो आपका रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है, सो लेवल 00, 01, 10 and 11. So this is requested privilege level 2. Okay. अब यहाँ पे TI. So next bit is TI. So TI will indicate whether it is for ये जो index है वो global descriptor table के लिए है या local descriptor table के लिए है. So if TI equal to 0, then it means this is for global descriptor table. If TI equal to 1, it means that it is for local descriptor table. तो ये कौन से टेबल को पॉइंट करेगा? whether it is pointing to the local table or it is pointing to the global table. यहाँ पे हमारे पास local table होगा and this is global table. So कौन से टेबल को पॉइंट कर रहे हैं हम? कौन से टेबल का इंडेक्स यूज कर रहे हैं? So it is GDT. If it is 0, then GDT. If it is 1, then LDT, local descriptor table. Okay. अब इंडेक्स क्या है? व्हाट इज द इंडेक्स? तो अब ये जो बाकी के बिट्स जो बचे, हाउ मेनी रिमेनिंग बिट्स आर देयर? सो रिमेनिंग बिट्स आर, नाउ हाउ मेनी रिमेनिंग बिट्स आर देयर? सो दिस 13 बिट्स आर रिमेनिंग. तो अब ये आपको 13 बिट को बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा. सो ये जो 13 बिट्स बचे उसको आपको बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा. यू कैन डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटर and from calculator you can convert it. Calculator का use करके आप उसको convert कर सकते हो. So again I am repeating, while exam keep calculator with you because for lots of examples you require calculator. So यहाँ पे binary है suppose अभी. So binary. So let's say that it is 1 0 1 1 1 1. 0 0 1 1. आगे के 2 0 यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि इट विल बी नो मैटर आगे कितने भी 0 आप ऐड करोगे. इट इज 755 whatever. So according to that you have to calculate it. ये आपको कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करना होगा. you have to represent it. You have to represent this into. So you have to represent this binary. It is my mistake. It is not 1510 over here. So whatever it is 755 right now is per our answer. So it is pointing to this 755. 755 को ये point कर रहा है. So that is how you are going to calculate, and so that is the index. This will be your index. I will modify. ये आपको कन्वर्जन ध्यान में रखना है. दिस इज अ 2:2. आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो 2:0, 2:1, 2:2.
2 raised to 3, like that. You can convert it 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. So according to that, your conversion answer should be there. आपको binary to decimal conversion पता होना चाहिए. And according to that, it will be your answer वो index को point कर रहा होगा. So that has been pointed by this. Okay, so यहाँ पे आंसर आ रहा है 755. Okay. So that is what is the meaning of this selector. Selector का meaning क्या है? Now, if you have observed over here, then 100% memory degradation. It means what? Okay, let me check. Okay, 1 minute. 1 minute. Whatever is the correct answer, but ultimately you have to convert it into binary to. Okay, so it's my mistake right now. You have to if it is. Okay, so it will be whatever it is. If it is 1510, then the answer is correct. 1510. Okay. Yes, I have missed the last zero. Sorry. Let me add it. So yes, it is 1011100110. Yes, so 1510 is the correct answer. Yes, 1510 is the correct answer. So it is pointing to, so this is correct. 1510 is the correct answer. It is indicating the 1510th index of your global descriptor table. Global descriptor table की कौन सी index को ये point कर रहा है? It is pointing to that. Okay. So next, if you will observe here, what is the problem? यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रॉब्लम क्या है और व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि हमारे पास ये मेन मेमोरी है. पहले हम क्या कर रहे थे, व्हाट we did earlier in 8085 or in 8086 और in real mode, हमारे पास सेगमेंट होता था. सेगमेंट वी आर हैविंग डिफरेंट सेगमेंट. We will calculate the physical address from registers. रजिस्टर का यूज करके हम एक पूरा फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर रहे थे. दोनों रजिस्टर का एड्रेस कंबाइन करके हमको एक फिजिकल एड्रेस फिल कर रहे थे. Whether it is a real addressing real mode or in 8085 8086 कोई भी दूसरे प्रोसेसर में. अब प्रोटेक्टेड मोड में एक डिसएडवांटेज क्या हुआ? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ओवर हियर इन प्रोटेक्टेड मोड? दैट वी आर यूजिंग इट ओवर हियर. यहाँ पे हमको क्या, हम कैसे मेमोरी कैसे एक्सेस करेंगे? सो यहाँ पे हमारे पास एक सेगमेंट्स है हमारे जो हमको एक्सेस करना है. वी वांट टू एक्सेस दिस सेगमेंट्स. उसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ पे हमारे पास? मेमोरी में एक टेबल में जीडीटी या एलडीटी कोई एक टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन होगी. तो पहले हमको ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल एक्सेस करना होगा. उसमें से हम पहले डिस्क्रिप्टर एक्सेस करेंगे, उसमें से हमको बेस एंड लिमिट मिलेगी एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सेस आवर सेगमेंट. सो हमको 2 बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी. वी हैव टू एक्सेस मेमोरी 2 टाइम्स. सो एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एक्सेस इज डिग्रेडेड बिकॉज एवरी मेमोरी एक्सेस इज 2 एक्सेस. 2 बार हमको मेमोरी एक्सेस करनी होगी. फर्स्ट टाइम वी हैव टू गेट द बेस एड्रेस फाइंड करने के लिए. सो बेस एड्रेस कहां से मिलेगा? टेबल में से, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से. सो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल इज अगेन प्रेजेंट इन मेमोरी. सो हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 2 बार मेमोरी एक्सेस करनी होगी. सो दैट इज अ डिसएडवांटेज ओवर हियर. सो गेटिंग द बेस एड्रेस एंड देन एक्चुअली एक्सेसिंग द डेटा को एक्सेस करने के लिए दूसरी बार. सो उसका सॉल्यूशन क्या है? सो अब सॉल्यूशन इसका ये है कि हम यहाँ पे अब इसको कैसे यूज करेंगे. सो विथ ईच एंड एवरी सेगमेंट रजिस्टर, सो विच ईच एंड एवरी सेगमेंट रजिस्टर, ये हमारे सेगमेंट रजिस्टर के है, उसके साथ अब उसके पीछे हम डिस्क्रिप्टर लोड कर देंगे. फर्स्ट टाइम डेफिनेटली यू विल हैव 2 एक्सेस फॉर मेमोरी, but next time onwards whenever you are accessing the same segment,
जब पहली बार आप सेगमेंट एक्सेस कर रहे होंगे तब 2 बार एक्सेस होगा आपकी मेमोरी, बट सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स इट विल टेक ओनली 1 मेमोरी एक्सेस। क्यों? क्योंकि आपका ये जो डिस्क्रिप्टर होगा वो हम यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर में लोड कर देंगे। कहाँ पे लोड कर देंगे? सेगमेंट रजिस्टर का इनविजिबल पार्ट है उसमें। सो इट इज नोन एज इनविजिबल कैश रजिस्टर और इनविजिबल कैश मेमोरी। Understand it carefully. Again I am repeating. Segment registers. We are having segment registers CS, SS, DS, ES, FS and GS. 6 segment registers are there. उसमें हम 16 बिट 0 to 15 ये 16 बिट हम एक्सेस कर सकते हैं। That is known as visible part of that segment register. अब हर एक सेगमेंट के साथ, अब सपोज यहाँ पे पहली बार जो हमारा लास्ट एग्जांपल था वो हम कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पे पहला जो अभी जो सेगमेंट रजिस्टर है वो इंडिकेट कर रहा है 1510। तो पहली बार जब आप एक्सेस करोगे तो क्या होगा? सो 1510 यहाँ पे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से वो डिस्क्रिप्टर यहाँ पे लोड हो जाएगा। कहाँ पे लोड हो जाएगा? उसका एक्सेस राइट क्या है, उसका बेस एड्रेस क्या है, उसके लिमिट क्या है, दैट विल बी लोडेड इन invisible cache of this registers. So हर एक जितने भी सेगमेंट रजिस्टर है उतने हमारे पास इनविजिबल कैश होंगी। एंड व्हाट विल बी द साइज? इसकी साइज क्या होगी? जितनी आपकी डिस्क्रिप्टर की साइज है। सो इट इज ऑफ 8 बाइट। यहाँ पे 8 बाइट का, सो 8 बाइट की एक पूरी एंट्री यहाँ पे लोड हो जाएगी। उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। कोई इंस्ट्रक्शन में आप ये इनविजिबल रजिस्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। इट विल बी यूज्ड बाय योर प्रोसेसर इंटरनली प्रोसेसर ये यूज करेगा। सो पहली बार क्या करेगा? पहली बार ये मेमोरी में पहला एक्सेस होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टर यहाँ पे लोड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसमें से आपको बेस एड्रेस मिलेगा और फिर वो बेस एड्रेस पे से जाके हम हमारा सेगमेंट एक्सेस करेंगे। बट सेकंड टाइम वेन एवर यू आर एक्सेसिंग द सेम सेगमेंट, अब आपने प्रोग्राम है उसमें 10 इंस्ट्रक्शन है। इफ यू आर हैविंग 10 इंस्ट्रक्शन, सो फॉर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देयर विल बी 2 मेमोरी एक्सेस, बट फ्रॉम सेकंड इंस्ट्रक्शन ऑनवर्ड्स यू विल हैव ओनली 1 मेमोरी एक्सेस। क्योंकि ये पार्ट आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर में है, तो अब आपको ये यहाँ पे वापस उसका बेस एड्रेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस कैश। सो कैश में से हम डायरेक्टली उसको एक्सेस करेंगे। सो दैट इज along with each segment register, we will keep a shadow register, or it is known as invisible cache register, which stores the additional necessary information about the segment descriptor की additional information, जो भी information होगी वो यहाँ पे store होगी। So that is about the segment and how we are using it. So now let's see the segment check. Okay, before we are going to see it, let me give you the information about the local descriptor table. What is there in local descriptor table and how we are going to use it. So global descriptor table we have seen. Next is a local descriptor table. So local descriptor table में क्या होगा? What will be there in local descriptor table? So in local descriptor table we will have, so local descriptor table is local for each and every task and can be created per task. जितने भी टास्क होंगे उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। और you can, if you don't want to use local table, you can use global table for any task. आपको एक भी टेबल लोकल टेबल नहीं बनाना है, इट्स ओके। आप डायरेक्टली ग्लोबल टेबल को यूज कर सकते हो और ग्लोबल टेबल में जो शेयर डेटा होगा वो आप एक्सेस कर सकते हो। So that is the 80386 protected mode defines only one GDT and one IDT, but it can be have n number of LDT. Lots of LDTs can be there. इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? So GDT की इंफॉर्मेशन GDTR में से, IDT की इंफॉर्मेशन IDTR में से and LDT की इंफॉर्मेशन LDTR में से. So it will keep the track of all this table in memory. Memory में ये tables कहाँ पे है उसकी information यहाँ पे आपको मिलेगा. The task either use all the descriptor from a GDT
if it does not define its own LDT. तो अगर खुद का कोई टेबल नहीं बनाना है, टास्क खुद का कोई टेबल नहीं बनाना चाहता है, that's completely fine. You can, that particular task can access the GDT global descriptor table. And LDT is not defined independently. अब ये local descriptor table आप independently define नहीं कर सकते हो. It will be defined as an extension of your GDT that containing the base and limit. So maximum, so it means that how many maximum LDTs can be there. So you can have N8192 if you are using all the GDTs entry. So maximum we can have 8192 if all the descriptor in GDT are used. अब ये, so it is like this. ये जो डायग्राम है, यहाँ पे ग्लोबल टेबल होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क है. These are the individual tasks. So these are the LDTs. Local spaces are there. अब ये local space है वो individual access नहीं करेगी, वो always आपको यहाँ से ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से होके ही जाना पड़ेगा LDT में. सेम भी अगर यहाँ पे जाना है तो आपको यहाँ पे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से ही जाना होगा. सो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? GDT में से प्लस LDTR में से. LDTR which will give you the local descriptor table information plus उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से मिलेगी. सो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्टोर करनी होगी. सो दैट इज ओवर हियर. सो LDT, ये जो है LDT, दिस इज माय ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल एंड दिस इज माय लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. अब ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल स्टार्ट कहां से होगा, वो एंड कहां पे होगा, उसका स्टार्टिंग लोकेशन एज वेल एज एंड लोकेशन, दैट विल बी मेंशन इन वन ऑफ द डिस्क्रिप्टर ऑफ GDT. सो ये एक डिस्क्रिप्टर होगा जिसमें हम मेंशन करेंगे दिस इज माय स्टार्टिंग एड्रेस फॉर लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल एंड दिस इज माय एंड एड्रेस फॉर लिमिट ऑफ लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. तो वो जो डिस्क्रिप्टर होगा वो ऐसा डिस्क्रिप्टर होगा, एंड दैट डिस्क्रिप्टर इज नोन एज सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. सो द सिस्टम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर present in the GDT which indicates the base address and limit for LDT. So इसमें अब एक्सेस बिट की जरूरत नहीं होगी. सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप के लिए 3 बिट थे, अब वो टाइप के लिए कितने बिट हम यूज करेंगे? सो नाउ वी विल यूज टाइप. सो दिस इज अ स्पेशल डिस्क्रिप्टर. ये जो डिस्क्रिप्टर यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है, this is one of the special descriptors. So how many such special descriptors are there? So ये type field कितने हमारे पास? How many such type fields are there? So 4 type fields are there. So S equal to 0. So S equal to 0 means it will indicate the system descriptor. And type equal to 4 bit. यहाँ पे हमारे पास 4 bit है, so 2⁴. So इसका मीनिंग हमारे पास ऐसे 16 सिस्टम डिस्क्रिप्टर होंगे. वो 16 में से एक ये है आपके सामने. टोटल हमारे पास 16 सिस्टम डिस्क्रिप्टर्स होंगे which are available in GDT. GDT में वो अवेलेबल हो सकते हैं. So that can be present in the GDT. So उसमें से ये आपके सामने है. This is one of the system descriptor. And if your descriptor is like this, जिसमें type is 0010. So if your type is 0010, then this system descriptor is for LDT. तो ये जो system descriptor होगा वो किसके लिए होगा? आपके LDT के लिए. इसका मीनिंग ये डिस्क्रिप्टर जो बेस एड्रेस एंड लिमिट प्रोवाइड करेगा वो किसका बेस एड्रेस होगा? आपके GDT का यहाँ पे बेस एड्रेस होगा और ये उसकी लिमिट होगी. So that is limit for base address and limit for this. You will get base address and you will get limit of this from this.
सिस्टम डिस्क्रिप्टर। बाकी के बिट यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, इसका लेवल ऑलवेज क्या होगा, हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल। present or present bit can be 0 or it can be 1. So whether this particular descriptor is present in memory or not, that can be 0 or 1. And these bits are 0 0 0. ये जो bits है वो 0 0 0 है. So this is about the system descriptor which is having type equal to 2. अगर इसको बोलेंगे 0 0 1 0 and s equal to 0. So if s equal to 0 and type equal to 2, then this descriptor is for local descriptor table and local वो indicate करेगा आपका local descriptor table का base address as well as limit. Is it clear? यहाँ पे ये clear हो गया. So that is about the system descriptor, one of the system descriptor. अब ये local descriptor table में क्या होगा, individual segments, individual task, उसमें भी descriptor ही होंगे, but वो task के लिए, खुद के task के लिए. So now consider, let me give you one example. Let me give you one example. Let me give you, yes, ये जो example है उसके. So suppose आपके पास दो टास्क है अभी, तो ये एक ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होगा एंड दोनों टास्क के लिए सपोज आपके पास तीन टास्क है, तो दो टास्क के लिए आपने लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल बनाया है बट एक टास्क के लिए नहीं बनाया है, तो वो टास्क कौन सा टेबल एक्सेस करेगा, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल एक्सेस करेगा. अब मेमोरी कैलकुलेशन, एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होगा, तीनों टास्क के लिए फॉर ऑल द थ्री टास्क. फर्स्ट यहां से आपको टास्क वन का लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल मिलेगा, फिर आपको टास्क 2 का लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल मिलेगा. तो ये टास्क 1 एंड 2 का जो डिस्क्रिप्टर होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, द वन विच यू हैव डिस्कस रिसेंटली, उसमें एस बिट क्या होगा 0, उसमें टाइप बिट क्या होगा 0 0 1 0. तो ये दोनों डिस्क्रिप्टर यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहे होंगे आपके, उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी, एस बिट इक्वल टू 0 एंड टाइप बिट इक्वल टू 0 0 1 0. एंड बेस उसमें जो भी एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस किसका होगा, आपके लोकल टेबल का, एंड उसका लिमिट फिल होगी वो आपके लोकल टेबल की. फॉर टास्क 1 सेम वे, फॉर टास्क 2 उसका बेस एड्रेस होगा, उसका लिमिट फिल होगा. सो सेम विल बी देयर फॉर टास्क 2. अब टास्क 3 के पास खुद का टेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टर यूज कर सकता है, तो वो डिस्क्रिप्टर वापस क्या और यहाँ पे लोकल टेबल में भी क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन टेबल, तो वहां पे भी कुछ डिस्क्रिप्टर ही होंगे विच विल बी लोकल मेमोरी, विच इज लोकल मेमोरी, विच इज लोकल सेगमेंट्स. सो लोकल सेगमेंट मीन्स ये सेगमेंट कौन एक्सेस कर पाएगा, सिर्फ टास्क 2 एक्सेस कर पाएगा. सो ये जो सपोज मैं अगर आपको, इफ आई वांट टू शो यू द बिग पिक्चर, सो सपोज दिस इज माय मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में मेरे पास कुछ टास्क 2 only. These segments can be accessed by task 1 only. And this is global descriptor table, GDT. And there will be local descriptor tables. 2 local descriptor tables will be there in memory, LDT and LDT. अब पहले हम यहां से सबसे पहले क्या एक्सेस होगा, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल. एक्सेस कर पाएंगे. So 1 and 2. So over here you should have 2 segments. Same way यहाँ पे सपोज 5 segments एक्सेस कर पाएगा, तो यहाँ पे 5 एंट्री होगी आपके पास, 0 1 2 3 4. अगेन इट विल बी डिस्क्रिप्टर्स, ये भी 8 बाइट के डिस्क्रिप्टर्स होंगे, 0 1 2 3. तो वो क्या इंडिकेट करेंगे, ये like that. We'll discuss it in detail, address calculation और सब कुछ example के साथ देखेंगे, so don't worry about it. But just remember the format of this descriptor. ये descriptor का format क्या है. And yes, one important announcement is there. Today we will have lecture. You are having a lecture from 2 to 3. 2 to 3 आपको lecture जो है DBMS का,
That lecture I will conduct and we will continue in that lecture. ये microprocessor हम वहाँ पे continue करेंगे. So from 2 to 3 you need